Yes, Fayol's principles of management. Now, Fayol's principles of management, in this we have 14 principles to study. So, before going through one by one principles, firstly we will study about the Fayol, that who was Henry Fayol. See, Henry Fayol 1841 to 1925, and he got degree in mining engineering. And joined French mining company in 1860. 1860 में एक माइनिंग कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया था एज एन इंजीनियर. ओके, एज एन इंजीनियर. ही रोज टू द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1938. एंड स्टूडेंट्स, जब कंपनी बैंकरप्सी की वर्ष पे आ गई, then he accepted the challenge and became by using his rich and broad administrative experience, he turned the fortune of the company. Means जो कंपनी थी वो बिल्कुल बैंकरप्सी में आ गई थी, डिक्लाइन हो रही थी. तो उस फिर हेनरी फेयोल ने एक्सेप्ट किया चैलेंज और कंपनी को कहाँ ले गए? टर्न द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी. एंड फॉर हिज contributions he is well known as the father of general management. Henry Fayol as the father of general management. जनरल मैनेजमेंट का इन्हें फादर कहा जाता है. ओके, सो हेनरी फेयोल 1841 to 1925, he got degree in mining engineering and he joined a company as an engineer. Then later he became a managing director also. And when the company was on the verge of bankruptcy, he accepted the challenge and turned the fortune of the company. And for this contributions, he is well known as the father of general management. Now students, we have 14 principles of Henry Fayol. First one is division of work. Then authority. And responsibility. Third one, discipline. Fourth one, unity of command. Fifth, unity of direction. Sixth one, subordination of individual interest to general interest. Okay, now seventh one is remuneration of employees. Eighth one is centralization and decentralization. Centralization, decentralization, then scalar chain, tenth one is order, 11th is equity, this is 12th one is stability of personnel, okay. 13, initiative, and 14 is esprit de corps.
So these are the 14 principles given by Henry Fayol, and we will take the first 5 principles in this video. It means division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command and unity of directions. अभी हम इतना 5 principles पढ़ेंगे. Okay. So what is division of work? Students, have the name. One second. As the name suggests, the division in the sense divide कर देना. किसको divide करना? काम को divide करना. So Henry believed that the segregating of work in the workforce amongst the worker will enhance the quality of product. Okay. And similarly, he also concluded that the division of work improves the productivity, efficiency. Obviously, जब आप जैसे ये पूरा वर्क है, टोटल यूनिट है, ओके, दिस इज टोटल यूनिट, एंड इफ़ यू आर गिविंग बर्डन ओनली ऑन वन इंडिविजुअल, अगर एक ही इंडिविजुअल पे सारा बर्डन है तो एफिशिएंसी नहीं आएगी, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं होगा, इस पे सारा बर्डन आ गया. लेकिन अगर आपने और पर्सोनल्स ऐड किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, आपने डिवाइड कर दिया वर्क, तो ये क्या होता है, इसमें हमारी एफिशिएंसी आती है, सबका काम बढ़ गया, किसी पे बर्डन नहीं है, इसका काम उसका नहीं, अपना अपना काम करेंगे, एक्यूरेसी रहेगी काम में, ठीक है, प्रोडक्टिविटी आएगी, सब मिलकर एक यूनिट को, मतलब जो आउटपुट निकालना है सब मिलकर काम कर रहे हैं तो एक प्रोडक्टिविटी आती है. प्रोडक्टिविटी, एक बंदे पे आपने एडमिनिस्ट्रेशन भी दे दिया, फिर वहाँ दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी अगर आपने वर्कलोड दे दिया तो प्रोडक्टिविटी नहीं आती है. सो डिवीजन ऑफ वर्क, ही सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, इट एनहांस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. अगर आपने वर्क डिवाइड कर दिया तो क्या बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ the product. Okay, now authority and responsibility. Authority means the head part, authoritative level. Responsibility, your duties. Now these are the two key aspects of management. Authority facilitates the management to work efficiently, and responsibility makes them responsible for the work and their guidelines, leadership. Okay, so ये दोनों, जैसे यहाँ ये अथॉरिटी लेवल है, ठीक है, अथॉरिटी लेवल है, इन्होंने दिया अपना वर्क, यहाँ से डिवाइड हो गया, नाउ इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, ये अथॉरिटी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ वर्क शुरू हो जाना चाहिए. ये टू की एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर भी, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी अथॉरिटी लेवल को आप एफिशिएंटली यूज़ करें, ठीक है, इफेक्टिवली. सो दीज आर द टू की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, टू वर्क efficiently, and in this thing responsibility makes them responsible for the work done under their guidance or leadership. Means आपका क्या है, अगर आपने यहाँ पर अथॉरिटी से जो वर्क मिला है तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो वर्क डन हुआ है उसको चेक किया जाएगा, लेकिन किसके गाइडेंस और लीडरशिप में, अथॉरिटी लेवल के. सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी which makes them responsible for the work done under their guidance and leadership. ये जो काम हुआ है वो वापस से एक रिस्पॉन्सिबल इनको भी बनाता है. क्यों? क्योंकि आप कोई काम करवा रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो जो काम होगा अगर आपके गाइडेंस में हुआ है तो आपको उसका जिम्मेदार भी माना जाएगा, क्योंकि आपकी गाइडेंस और लीडरशिप के अंडर वो हुआ है. नाउ स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन. विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड. चाहे आप बिजनेस ले लो, चाहे आप अपनी पढ़ाई ले लो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप अचीव नहीं कर सकते. इट इज़ द कोर वैल्यू फॉर एनी प्रोजेक्ट और एनी मैनेजमेंट. सी, कोर वैल्यू का है इसे, कोर. विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अचीव. ओके, दिस इज़ द कोर वैल्यू
of any project and management. See, good performance and sensible interrelation makes the management job easy and comprehensive. Employees' good behavior also helps them smoothly build and progress in their professional careers. ठीक है, अगर एक सेंसिबल इंटररिलेशन है, गुड परफॉर्मेंस हो रहा है, एकदम सही तरीके से काम हो रहा है, तो क्या होता है, आपस में बहुत अच्छा एक रैपो बिल्डिंग होती है, इसकी अच्छा रिलेशन होता है एंड प्रोफेशनल करियर की सबसे अच्छी प्रोग्रेस होती है. ओके, सो विदाउट डिसिप्लिन it is rightly said that nothing can be achieved. This is the core value of the any project or management. Now, unity of command and unity of direction. Unity of command की unity. See students, unity of command means, this means an employee should have only one boss and follow his command. Like अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपको किसी ने चुना है, ये 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, और अगर आपका ये बॉस है, देन आपको किसको लिसन करना है, आपको सिर्फ इसको फॉलो करना है, इसको रिपोर्ट करना है. आपका जो भी वर्क डन होगा या जो भी आपको पूछना है या आपका जो परफॉर्मेंस चेक होगा लास्ट में, फीडबैक, एवरीथिंग will be checked by only one boss and you have to follow only his commands. But now what happens, अगर आप और चीज़ें भी और बॉसेस भी आ जाते हैं, अगर एक एम्प्लॉय से ज़्यादा है, मोर देन वन बॉस, देयर बिगिंस अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्रिएट कन्फ्यूजन. आपको जैसे किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा और वर्क जो होगा बिल्कुल सही नहीं होगा, एफिशिएंटली नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी. एक ने जो कहा वो अपनी बात भी याद रखता है, ठीक है, और वही आपको गाइडलाइंस दे रहा है, वही आपको बता रहा है, आपने वर्क करके वापस इन्हीं को रिपोर्ट किया, देन कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको पता है कि ये मेरा बॉस है, मुझे इसको रिपोर्ट करना है, इसके कमांड को फॉलो करना है. सो दिस इज़ यूनिटी ऑफ कमांड इज़ वेरी नेसेसरी इन बिजनेस, इन मैनेजमेंट. ओके, होना चाहिए. अगर एक नहीं है, एक से ज़्यादा को रिपोर्ट करना है, तो कन्फ्यूजन होगा कि वो तो ये कह रहे थे, उसने ये कहा था, उसने ये तरीका बताया था, दैट क्रिएट्स अ कैओस. सो उस कैओस को मिटाने के लिए इन्होंने प्रिंसिपल दिया, यूनिटी ऑफ कमांड होना ज़रूरी है. नाउ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में जाना है? सी, whoever is engaged in the same activity should have a unified goal. This means all persons working in a company should have one goal and motive which will make the work easier and achieve their set goals. आप एक कंपनी के हो, ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, आप सब इसमें वर्क कर रहे हो. कंपनी का जो गोल है और आपका काम करना जो है, इसमें डायरेक्शन सबकी एक होनी चाहिए, बिकॉज हमें ये गोल अचीव करना है. टू अचीव दिस गोल आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए. कोई किस हिसाब से काम कर रहा है, कोई हिसाब से, ऐसा नहीं चलता. ओके, whoever is engaged in the same activity should have a unified goal. एक ही गोल होना चाहिए. दिस मीन्स all the persons working in a company should have one goal and one motive. One goal and one motive. तो क्या होगा, एक गोल की तरफ काम करना है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्शन सेट है, कमांड सेट है, और एफिशिएंसी रहेगी, प्रोडक्टिविटी रहेगी. ओके, सो दीज वर द 5 प्रिंसिपल्स, द फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स वी हैव डिस्कस्ड ऑफ हेनरी फ्योल. डिविजन ऑफ वर्क, authority and responsibility, discipline, unity of command and unity of direction, and rest of the principles we will study later. Okay.